السلام علیکم۔ آغاز ہے رب کریم کے ببرکت نام سے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ آج کی اس نئی اور انفارمیٹیو ویڈیو میں اپنے تمام دوستوں کو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے پاکستان سے ایران ترکی ڈنکی کے بارے میں۔ اس وقت سن 2024 کے ان آخری مہینوں میں نومبر دسمبر میں ایران ترکی بارڈر کی اس وقت تازہ صورتحال کیا ہے، اور ایران ترکی بارڈر کی تازہ صورتحال کے مطابق میں آپ لوگوں کے ساتھ ایران ترکی بارڈر کے متعلق اپنا ذاتی ایکسپیرینس اور تجربہ شیئر کرنے والا ہوں۔ اس کے بعد پاکستان سے ایران ترکی پہنچنے کے بعد ترکی سے کیا ہم ڈنکی لگا کر سمندری راستے کے ذریعے اٹلی جا سکتے ہیں؟ ترکی پہنچنے کے بعد کیا ہم ترکی سے بائی روڈ یونان کی ڈنکی لگا کر یورپ کے کنٹری یونان میں پہنچ سکتے ہیں؟ ترکی سے ڈنکی لگا کر بائی شپ طریقے سے اٹلی جانا کتنا آسان ہے اور کتنا مشکل؟ ترکی سے یونان بائی روڈ جانا اس وقت سن 2024 کے ان آخری مہینوں میں کتنا آسان ہے اور کتنا مشکل؟ آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم تفصیل کے ساتھ اور میں آپ لوگوں کے ساتھ ایران ترکی بارڈر کے حوالے سے اپنا ذاتی تجربہ اور ایکسپیرینس شیئر کرنے والا ہوں۔ اگر آپ میرے اس ویڈیو کو مکمل اور اس ویڈیو کو کمپلیٹ سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی بہت اچھی طریقے سے رہنمائی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں نے اس سے پہلے میرا یوٹیوب چینل اطہر ولاگ آفیشیل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو یار میرے یوٹیوب چینل اطہر ولاگ آفیشیل کو سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ میں آپ کے لیے فیوچر میں مستقبل میں اچھی انفارمیٹیو ویڈیوز بناتا رہوں، جس سے آپ لوگوں کی مکمل طور پر رہنمائی ہوتی رہے۔ دیکھیں کہ ہمارے جو پاکستانی نوجوان ہیں وہ اپنا فیوچر بنانے کے لیے، اپنا مستقبل بنانے کے لیے کسی ایسی کنٹریز کا انتخاب کرتے ہیں جو کنٹریز ان کو سیٹلمنٹ کے پی آر کے زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کرتی ہوں۔ اب ان کنٹریز میں جو کنٹریز آتی ہیں وہ یورپ کی کنٹریز ہیں، جس میں اٹلی ہو گیا، اسپین ہو گیا، فرانس ہو گیا، پرتگال ہو گیا، جرمنی ہو گیا۔ اب پاکستان سے یورپ کی ان کنٹریز میں جانے کے آپ کے پاکستانی نوجوانوں کے پاس دو رستے ہیں۔ ایک رستہ جو ہے وہ لیگلی رستہ ہے، جس کے اندر سٹڈی ویزا آتا ہے، سٹڈی ویزے کے بعد ٹورسٹ ویزا آتا ہے، بزنس ویزا آتا ہے۔ کیونکہ ہمارے پاکستانی نوجوان کم ایجوکیشن کی وجہ سے نہ سٹڈی ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اور ٹورسٹ ویزے کی ریکوائرمنٹس بھی نہیں پوری کر سکتے اور بزنس ویزا بھی نہیں حاصل کر سکتے۔ اس وجہ سے ہمارے نوجوان پھر شارٹ کٹ کے چکر میں یورپ جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ جو شارٹ کٹ ہے یورپ جانے کا جو دوسرا طریقہ ہے وہ غیر قانونی طریقہ یعنی ڈنکی کا سفر ہے۔ ہمارے بہت سے پاکستانی بھائی برستہ ایران، برستہ ترکی سے پھر غیر قانونی طریقے سے یورپ کے کنٹری گریس یعنی یونان میں انٹر ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان سے برستہ ایران ترکی بارڈر تک تو ہم پہنچ جاتے ہیں۔ اس وقت ایران ترکی بارڈر کی اس وقت تازہ صورتحال کیا ہے؟ دیکھیں کہ اب آپ کو پاکستان سے غیر قانونی طریقے سے یورپ کی ڈنکی لگانے کے لیے، ترکی کی ڈنکی لگانے کے لیے سب سے پہلے ایجنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھیں کہ اگر آپ لوگ غیر قانونی طریقے سے یورپ جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیشہ ایجنٹ وہ تلاش کریں جس سے آپ کا محلے دار، آپ کے علاقے سے آپ کا کوئی رشتہ دار یا آپ کا دوست جس ایجنٹ سے پہلے پاکستان سے برستہ ایران، برستہ ترکی سے یونان یا یورپ کے کسی بھی کنٹری میں پہنچ چکا ہے تو آپ لوگ سب سے پہلے اس ایجنٹ کے ساتھ بات کریں۔ کیونکہ آج کا سوشل میڈیا کے اوپر فیس بک ہوگی، ٹک ٹاک ہوگی، بہت سے ایجنٹ مافیا، بہت زیادہ مگرمچھ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ لوگوں کو گمراہ کر
डंकी लगवाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो पुराने एजेंट होते हैं जिनके जरिए आप लोगों के अहबाब, आप लोगों के रिश्तेदार, आप लोगों के दोस्त या मोहल्ले से या आपके करीबी गांव इलाके से जो लोग पहुंच चुके होते हैं ना, वो लोग वो एजेंट जो होते हैं वो आप लोगों को गारंटी देते हैं कि हम आपको जिम्मेदारी के साथ यूरोप तक पहुंचा देंगे, ग्रीस तक, इटली तक, स्पेन तक, फ्रांस तक हम गारंटी के साथ पहुंचा देंगे। अगर वो लोग अगर हामी भर लेते हैं तो फिर आप लोग इस रास्ते पर निकलें, क्योंकि सोशल मीडिया एप्स के ऊपर, टिकटॉक, फेसबुक के ऊपर बहुत ज्यादा ऐसे मगरमच्छ बैठे हुए हैं जो आपको इन गैर कानूनी रास्तों पर निकाल कर आप लोगों के पैसों के साथ फ्रॉड करते हैं। एजेंट ढूंढने के बाद आप पाकिस्तान से बरसता ईरान तुर्की बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं। देखें कि आम दिनों की निस्बत सन 2024 के इन आखिरी महीनों नवंबर दिसंबर में जो ईरान तुर्की बॉर्डर की ताजा सूरत हाल है उसके हवाले से मैं आप लोगों को बताना ये चाहता हूं। जैसे कि मैंने सन 2022 के आखिरी महीनों में डंकी लगाई थी अक्टूबर में। जब मैंने अक्टूबर के अंदर दूसरी मर्तबा डंकी लगाकर बॉर्डर क्रॉस कर तुर्की में जब मैं एंटर हो गया था, अवान शहर से जब मैं गिरफ्तार हुआ था, जब मुझे पकड़ा गया, और जब अवान शहर से पकड़ने के बाद अब मुझे ईरान तुर्की बॉर्डर पर तुर्क आर्मी ने ईरान की तरफ जब डिपोर्ट किया था, उस हवाले से मैं आप लोगों को बात बता देना चाहता हूं। जब मुझे दूसरी मर्तबा डिपोर्ट किया गया था तब अक्टूबर का महीना था। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सर्दी का आगाज हो जाता है तो बॉर्डर्स के ऊपर जो सख्ती है आम इलाकों की निस्बत ज्यादा होती है। तो मुझे जो तुर्की आर्मी के अफसरान थे ना, उन्होंने रात के 2 से 3 बजे ईरान की तरफ डिपोर्ट किया था। ठीक है, रात के 2 से 3 बजे मुझे ईरान की तरफ डिपोर्ट किया था, तुर्की से पकड़कर ईरान की तरफ। तो मैंने देखा ये था कि जो तुर्की बॉर्डर है ना, उसके ऊपर जो अफसरान, जो बड़े बड़े अफसरान होते हैं, जब मुझे तुर्की से आर्मी वालों ने अरेस्ट किया था और जब मुझे बॉर्डर पर अफसरान के हवाले किया था, तो जो बड़े छावनियों के ऊपर, जो जिनकी बॉर्डर्स पर जीरो लाइन के ऊपर जिनकी ड्यूटीज होती हैं, जो बड़े अफसरान होते हैं ना, वो रात को 12, 1, 2 बजे के बाद अपनी अपनी छावनी में जाकर सो जाते हैं। और जो सिपाही होते हैं ना, जो नए नए आर्मी को ज्वाइनिंग जिन लोगों की हुई होती है, जिनको जो लोग नई नई आर्मी को ज्वाइन कर कर आते हैं, तो जब उनकी बॉर्डर के ऊपर ड्यूटी लग जाती है तो जो बड़े अफसरान होते हैं ना, वो तो अपनी छावनी में जाकर सो जाते हैं। और जो नए सिपाही उन्होंने भर्ती किए होते हैं, जो यंग जनरेशन के होते हैं, जिनकी उम्र 18 साल से लेकर 22 से 25 साल होती है, वो फिर अपनी बातों के अंदर 2 से 3 लड़के होते हैं। जब मुझे रिपोर्ट किया गया था तो 2 से 3 लड़के मैंने 2 से 3 छावनियों के अंदर देखे हैं, जो खुद ही आपस में बात कर रहे थे, ना इतनी सख्ती थी। तो इस वजह से इस बात का नाजायज फायदा उठाते हुए भी ईरानी एजेंट आपको ईरान तुर्की बॉर्डर क्रॉस करवा देते हैं। वो तो हर बंदे की अपनी किस्मत होती है। अगर आप लोगों की किस्मत अच्छी है, सख्ती होने के बावजूद भी आप तुर्की के शहर इस्तांबुल तक पहुंच जाते हैं। अगर आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार या आपका कोई करीबी दोस्त, मोहल्लेदार जिस एजेंट के जरिए गया होता है, हामी बढ़ता है आपको ईरान के रास्ते तुर्की डंकी लगवाने की, तो फिर आप डंकी लगाएं, वगरना आप डंकी का सोचे भी ना। तो आप अगर आप लोग डंकी लगाने की बजाय आप बहुत आसानी के साथ लीगली तौर पर 4 से 5 लाख रुपए सन 2024 के इन आखिरी महीनों में एजेंट लोग आपको पाकिस्तान से तुर्की डंकी का 4 से 5 लाख रुपया डंकी लगवाने का आप लोगों से ले रहे हैं। लेकिन अगर आप लीगली रास्ता इख्तियार कर 5 से 6 लाख रुपए में तुर्की जा सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान से लीगली तौर पर तुर्की जाते हैं, तुर्की जाने के बाद, तुर्की पहुंचने के बाद आप डायरेक्ट तुर्की पहुंचने के बाद यूनान की डंकी ना लगाएं।
पाकिस्तान से लीगली तरीके से या गैर कानूनी तरीके से डंकी लगाकर अगर आप पाकिस्तान से तुर्की जाते हैं तो आप समंदरी रास्ते के जरिए डंकी लगाकर इटली जाने की कोशिश ना करें, जल्दबाजी ना करें। अगर आप गैर कानूनी तरीके से भी डंकी लगाकर पाकिस्तान से तुर्की पहुंच जाते हैं तो आप जल्दबाजी ना करें यूनान की या इटली की समंदरी डंकी लगाने में या बाय रोड डंकी लगाने में। आप कोशिश ये करें, आप तुर्की पहुंचने के बाद तुर्की के हालात का जायजा लें, यूनान के हालात का जायजा लें। जब आपको हालात उधर मुनासिब लगे तो फिर आप आगे जाने का रिस्क लें। सबसे पहले बात करते हैं तुर्की पहुंचने के बाद, इस्तांबुल पहुंचने के बाद इस्तांबुल से बाय शिप समंदरी रास्ते के जरिए इटली जाना कितना आसान है। देखें कि इन दिनों में सन 2024 के नवंबर दिसंबर के महीने में जो समंदरी हालात होते हैं, समंदर के अंदर तूफानी हालात होने की वजह से आप लोग तुर्की से इटली समंदरी रास्ते के जरिए नहीं जा सकते, क्योंकि समंदरी हालात खराब होने की वजह से आपकी जान को खतरा होता है। मैं आप लोगों को आगाह ये करता जाऊं कि आप लोग आम दिनों में भी तुर्की से या लीबिया के रास्ते से समंदरी डंकी ना लगाएं, क्योंकि समंदर के हालात खराब होने में, तूफान बर्पा होने में देर नहीं लगती। तो समंदरी डंकी के अंदर आपकी जान जाने के ज्यादा चांसेस होते हैं और आगे पहुंचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अच्छा, अगर आप लोग पाकिस्तान से लीगली तौर पर या डंकी लगाकर तुर्की तो पहुंच जाते हैं तो सन 2024 के इन आखिरी महीनों में तुर्की से यूनान जाना कितना आसान है, इसके बारे में बात करते हैं। देखें कि आम दिनों की निस्बत जब सर्दी का आगाज होता है नवंबर दिसंबर के अंदर, तो एजेंट माफिया लोग बहुत से भाइयों को डंकी लगवाकर यूनान भेजने की कोशिश करते हैं। अब आम दिनों की निस्बत में मुझे एक भाई का कमेंट आया था कि मेरा भाई तुर्की से अब 6000 यूरो एजेंट को देकर तुर्की से यूनान की गेम करने वाला है। तो बहुत से एजेंट लोग आप लोगों को इन दिनों में, सर्दियों के इन दिनों में, नवंबर दिसंबर में आपको तुर्की से यूनान भेजने की कोशिश करते हैं। देखेंगे तुर्की से यूनान अब भेजने की जो गेम होती है वो 5 से 7 अफराद तक होती है। देखेंगे अगर ज्यादा अफराद होंगे तो गेम पकड़ी जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर अफराद कम होंगे तो एजेंट लोग आप लोगों से आपको तुर्की से यूनान डंकी के चार्जेस ज्यादा लेते हैं। देखेंगे बहुत से एजेंट लोग आपसे तुर्की से यूनान अब भेजने के 2000 यूरो से लेकर 6000 यूरो तक आप लोगों से पैसों की डिमांड करते हैं। देखें कि अगर आप पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से डंकी लगाकर या पाकिस्तान से लीगली तौर पर तुर्की पहुंच जाते हैं, आप वहां तुर्की पहुंच जाने के बाद जल्दबाजी ना करें। आप पहले तुर्की के हालात देखें, आप यूनान के हालात देखें। जब आपको पता लगे कि लोग पहुंच रहे हैं तुर्की से बाय रोड यूनान की डंकी लगाकर यूनान में एंटर हो रहे हैं, तो फिर आप लोग इस तरह का रिस्क लेते हुए यूनान की डंकी लगाएं, वगरना आप लोग डंकी ना लगाएं। और आप लोगों ने अगर यूनान की भी डंकी लगानी है तुर्की से, तो आप लोग तुर्की के शहर इस्तांबुल, जिसे एजेंटों का गढ़ कहते हैं, आप तुर्की के शहर इस्तांबुल से एजेंट के जरिए गेम ना करें। आप उन लोगों के जरिए गेम करें जिनके जरिए से आपके दोस्त, रिश्तेदार, अजीजोकार या करीबी दोस्त आपके जिन एजेंट्स के जरिए जा चुके हैं, अगर वो हामी भरें तो फिर आप इस रास्ते का रिस्क ले, वगरना आप लोग ना रिस्क लें। आप अगर पाकिस्तान में हैं या आप तुर्की में हैं तो आप वहां पे स्टे कर लें और कोशिश ये करें कि आप लीगली तौर पर पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से यूरोप के लीगली तौर पर यूरोप जाने की कोशिश करें। दे मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।